Hello dear students, this is class 7 subject science lesson number 6. Today we read the question and answers of this lesson. Lesson name is physical and chemical changes. Physical means भौतिक रूप से, chemical means रासायनिक रूप से उनमें परिवर्तन होना. That one is the physical and chemical changes. Now, question number 1. Classify the changes involved in the following processes as physical or chemical. जो ये नीचे चेंजेस कुछ दे रखे हैं आपको, ये इनको हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के आधार पे बांटना है. तो आंसर में देखेंगे हम फिजिकल चेंजेस, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल. ये सारे वो चेंजेस हैं जिनको हम दोबारा से वापस रिवर्स कर सकते हैं. दैट वन इज द फिजिकल चेंजेस. नाउ केमिकल चेंजेस में फोटोसिंथेसिस, बर्निंग ऑफ कोल, डाइजेशन ऑफ फूड. इन चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते. दैट इज वाई दीज आर केमिकल चेंजेस. नाउ नेक्स्ट, इस वीडियो से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कौन से केमिकल चेंजेस हैं, कौन से फिजिकल चेंजेस हैं. सो लेट्स सी. Hello children. As we saw, matters of solid, liquid and gas can change their form when heated or cooled. Like water is a liquid, but when the water is heated till it boils, it changes into steam, that is gas. And if the water is cooled in a refrigerator, it changes into ice, that is solid. In this case, the molecules of water remain the same, but the space between the molecule changes. This change can be reversed by reversing the conditions. Like if we cool water vapor, it turns into water. And if we heat the ice, it becomes water again. This kind of reversible change is called physical change. But what will happen if we burn a piece of paper and it changes into the ash? Is it possible to turn this ash into paper again? No, it is impossible. So, there are some changes which are permanent and cannot be reversed. Such change which cannot be reversed is called chemical change. So we know when matter changes its state, the molecules of matter remain the same. Only the space between the molecule changes. Now the question is, why are some changes reversible, that is physical changes, and some are irreversible, that is chemical changes? This is because the molecules are made up of something else. We know matter is made up by molecules and molecules are made up by atoms. There are some substances which are made up of molecules having the same kind of atoms, while some other substances whose molecules have different kind of atoms. It means if molecules break in the form of atoms, they will not be the same anymore. For example, in the water, there are 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. And hydrogen and 1 atom of oxygen. Just the space between the molecule changes, and hence this change can be reversed back. That is, it's a physical change. But if we break the molecule of a substance, like the example of paper turning it to ash, it is not the same substance anymore. So in a chemical change, the molecules break into atoms and atoms rearrange themselves to form new molecules, and hence this change is irreversible. This is all for today. Bye bye children. Now next, question number 4. When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed
with the evolution of a gas, what type of change in is it? Explain. दिस इज़ ए केमिकल चेंज. जब भी हम बेकिंग सोडा के अंदर लेमन जूस डालते हैं तो उसके अंदर बबल्स उठते हैं, तो वो बताने कौन सी गैस के हैं. तो दिस इज़ ए केमिकल चेंज. ये केमिकल चेंज है जिसमें न्यू प्रोडक्ट बनता है. जब भी बेकिंग सोडा और लेमन जूस की रिएक्शन आपस में करवाई जाती है तो साल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है. और व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स, salt is formed releasing carbon dioxide gas and water. Now question number 5. When a candle burn, both physical and chemical changes take place. Identify these changes. Give another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes take place. जब भी कैंडल बर्न करती है तो उसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं, वो कैसे होते हैं ये बताना है. और कोई ऐसा एक एग्जांपल दो जो आपके चारों तरफ हो रहा होता है. तो आंसर नंबर 5, फिजिकल चेंजेस. ऑन हीटिंग कैंडल वैक्स गेट मेल्टेड इज ए फिजिकल चेंज सिंस इट अगेन टर्न्स इनटू सॉलिड वैक्स ऑन कूलिंग. केमिकल चेंजेस जो कौन सा हो रहा है इसमें, द वैक्स नियर टू फ्लेम बर्न्स एंड गिव्स न्यू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन शूट, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट. कुकिंग ऑफ फूड इज एन अनदर एग्जाम्पल वेयर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर्स. यस, केमिकल चेंज में इसमें क्या बताया गया है, जो फ्लेम के बिल्कुल पास की वैक्स होती है वो बर्न हो जाती है, जल जाती है, जिसके कारण क्या है वो टर्न हो जाती है किस चीज़ में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन शूट, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट में. सो दिस इज ए केमिकल चेंज. और इसका एक अनदर एग्जांपल जो है हम जो घर में हमेशा होता है, दैट वन इज द कुकिंग ऑफ फूड. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंज. दही का जमना एक केमिकल चेंज होता है, ये बताना है. कैसे बता सकते हैं. आंसर नंबर 6, सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंज सिंस ए न्यू सब्सटेंस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड विच डिफर इन टेस्ट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस. सेटिंग ऑफ कर्ड एक केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें एक न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनता है लैक्टिक एसिड, जिसको हम दोबारा से वापस कर्ड में नहीं चेंज कर सकते, दही में नहीं चेंज कर सकते, और टेस्ट भी इसका अलग होता है. आल्सो द चेंज इज इरिवर्सिबल, वो इरिवर्सिबल होता है. कर्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मिल्क अगेन, सो दैट इज वाई इट इज ए केमिकल चेंज. क्वेश्चन नंबर 7. एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस. यस, आंसर नंबर 7, जब भी बर्निंग होती है तो हम उसको केमिकल चेंज ही बोलते हैं, क्योंकि बर्निंग के दौरान कोई भी वुड है वो ऐश में, यानी कि एक न्यू सब्सटेंस में बदल जाती है. दैट इज वाई इट इज ए केमिकल चेंज. द चेंज इज इरिवर्सिबल वाइल कटिंग ऑफ वुड इज स्मॉलर पीसेस is a physical change because the original composition of wood does not change. means wood change नहीं होती किसी भी चीज़ में, इसका मतलब नया सब्सटेंस हमारे लिए कोई नहीं बनता. so no new substance are formed, that is why it is a physical change. Now next, question number 8. Describe how crystals of copper sulfate are prepared. इसके बारे में आपको एक वीडियो शो करता हूँ, इसको भी पढ़ें, पॉज कर लें इस वीडियो को, अच्छी तरह से रीड करें इसको, और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें. सी. Have you seen crystals of salts? Crystals are made through a process of crystallization. Let us try to make salt crystals from a solution of salt. For this we need thread, a saturated solution of copper sulfate and copper sulfate. First we will make a supersaturated solution of copper sulfate. Light the spirit lamp, place the copper sulfate solution on the burner, heat the mixture. Now keep on adding copper sulfate till no more salt is dissolved.
Fasten a thread on a support and suspend it in an empty glass. This thread will act as a nucleation center in the container. Now remove the solution from the burner. Pour the solution in the glass. Leave the glass aside for a few days. We see salt crystals formed on the string. This happens because the solubility of salt in water increases with temperature of solution. So more salt gets accommodated in the solution than it would have if water was at room temperature. This solution is called a supersaturated solution. The salt from this supersaturated solution gets precipitated out when the solution returns to room temperature. The salt molecules that get precipitated out start forming crystals at the nucleation center, which is the thread in this case. Crystallization is the process of formation of solid crystals of a substance by precipitating it out from a saturated solution. Why don't Have you seen क्रिस्टलाइजेशन का हमने जो प्रोसेस अभी देखा है, दैट वन इज़ अ डिफरेंट वन, बट इट इज़ वेरी गुड प्रोसेस. बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल हमें दिखाई देते हैं और बनते हैं. तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हमारे प्रैक्टिकल फाइल्स में भी है, तो हम वो भी करेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट्स फ्रॉम रस्टिंग. यस, पेंटिंग, हम जब भी आयरन गेट को पेंट करते हैं तो वो रस्ट, जंग लगने से बच जाता है. आंसर नंबर 9. फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज रिक्वायर्ड. रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर चाहिए. द कोट ऑफ द पेंट प्रिवेंट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन एंड वाटर. जो पेंट है वो गेट को, आयरन को बचाता है ऑक्सीजन और एयर को डायरेक्ट उसके पास जाने से. तो इस प्रकार से वो रस्टिंग से बच जाता है. क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स. ये कहते हैं भी कोस्टल एरिया में ये बहुत तेज़ी से होती है रस्टिंग ऑफ आयरन, और डेजर्ट में बहुत स्लो. आंसर नंबर 10. फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड. ये दोनों चीज़ चाहिए हमें, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, जब भी रस्टिंग करवानी है. तो ये दोनों की दोनों चीज़ें. इन कोस्टल एरियाज द क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन एयर इज़ हाई, बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डेजर्ट रीजन, डेजर्ट रीजन के का मुकाबले में. सो द रस्टिंग बिकम फास्टर इन कोस्टल एरियाज. इसीलिए वहाँ पर बहुत तेज़ी से होती है क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर बहुत हाई होती है, दैट इज़ वाई. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ गए बेटा आपके ये. तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टेनलेस स्टील. आपने देखा हो घरों में आजकल हम लोग बर्तन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील्स के. तो वो बनता कैसे है? सिंपल है. स्टेनलेस स्टील इज़ मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन मेटल like chromium, nickel and manganese. It does not rust. स्टेनलेस स्टील बनता है जब भी हम मिक्स करते हैं आयरन के साथ कार्बन को और मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज को. तो हमारे को क्या प्राप्त होता है? स्टेनलेस स्टील. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए ओजोन लेयर. ओजोन लेयर के ऊपर एक शॉर्ट नोट हमने देना है. ओजोन लेयर है क्या एक्चुअल में? ओजोन लेयर मैं बता दूं आपको, हमारी इन्वायरमेंट की आउटर, एटमॉस्फेयर की आउटर लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, विच कम्स फ्रॉम सन, जो सन से आती हैं. ओजोन एब्जॉर्ब्स दीज रेडिएशंस एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में टूट जाता है. ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम जो ओजोन, ओजोन से अलग होती है. कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन ए केमिकल चेंज? हाँ, इफ वायलेंट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस वर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड काज हार्मफुल टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स. ओजोन एक्ट एज नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशंस. इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने वाली सिर्फ एक ही चीज़ है जिसके कारण अर्थ पर
अर्थ पर जीवन संभव है। अगर ये डायरेक्ट लेयर्स डायरेक्ट आ जाएं, जैसे इस नेक्स्ट फिगर में देखेंगे हम लोग, अल्ट्रा वायलेट रेज जो सी है बहुत ज़्यादा हानिकारक है हमारे लिए, बी भी और ए भी। लेकिन अगर ये डायरेक्ट आ जाए हमारे तक, अर्थ पे पहुंच जाएं, तो कैंसर्स वगैरह जैसी बीमारियां आम हो जाएंगी और हमारा जीवन खत्म हो जाएगा अर्थ से। सो इट इज़ ए प्रोटेक्टिव लेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्लस आयरन बनता है आयरन सल्फेट ग्रीन प्लस कॉपर ब्राउन। और सी पॉइंट है आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस में वाटर, तीनों चीज़ मिलती हैं तो बनता है आयरन ऑक्साइड रस्ट जिसे हम बोलते हैं। तो इनका आंसर है इनके सिंबॉलिक फार्मूले के अंदर देना हमने। तो 2Mg प्लस O2 बनता है 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट ब्लू, बी का आंसर है जो, प्लस में आयरन लोहा है। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो FeSO4। अब देखो SO4 के साथ आयरन चला जाता है, क्यों? क्योंकि मोर रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट इज वाई SO4 गोज विद Fe। नाउ प्लस में कॉपर ब्राउन ये निकाल देता है। सी है 2FeO2 प्लस H2O। और क्या बनता है आपको अच्छी तरह से पता है, बताया था अभी, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस में हाइड्रोजन गैस। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बने रहें।